A warm and lovely morning, dear students. So, let us move to the next chapter of English grammar, which is also related to the tenses. That is the simple future tense, the going to form, and also will be covering one more topic, that is the continuous tense. Okay, so let us begin and let us know what is the simple future tense, then how and when the going to form is used. Okay, and what is the continuous tense of all the three tenses. Okay, so let us begin. Okay, simple future tense. Future tense or the future, it means that something which is about to come, that has not arrived yet. ठीक है, जो होने वाला है, हाँ, वो होता है हमारा फ्यूचर टेंस. तो पहले हम उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होता है. So, the sentence structure goes like subject plus will or shall plus V1 form of the verb. V1 is the root form. हमारा जो present form है ना, in the previous session I had given you one table to write. Yes, it was a long table जिसके अंदर बहुत सारे verb forms दिया है. Present, past and past participle. उसमें जो present form है वो हम यहाँ पे use करेंगे. And the object. Okay, so V1 is the first form of the verb or the root form of the verb. तो अगर आपको सिंपल फ्यूचर टेंस में सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना है तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसा होगा सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल. विल आप सभी प्रोनाउंस और सभी सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हो, लेकिन शैल जो है वो आप सिर्फ आई और वी के साथ ही यूज कर सकते हो और किसी के साथ नहीं. आई हैव मेंशन दैट हियर कि शैल जो है वो सिर्फ आई और वी के साथ जाता है, लेकिन विल वो सभी प्रोनाउंस यहाँ तक कि आई और वी के साथ भी यूज कर सकते हो. ही, शी, इट, किसी का नाम हो, कोई जगह हो, एवरीवेयर यू कैन यूज विल. Okay, but shall can only be used with I and we. Then the first form of the verb and then the object. Let us go through one example now. I shall see you tomorrow. I shall see you tomorrow. इसमें हमारा subject है I. Shall is that supporting verb or the auxiliary verb that we have used. I है इसके लिए मैंने shall use किया. अगर मैं will भी use करती तो भी चल जाता है. ठीक है. Then see, which is the V1 form of the verb. See, saw, seen. ऐसा 3 forms होते हैं. उसमें first form है see that we have used. Then the object. He will welcome the guest. He is the subject. Will is the supporting verb. He के साथ shall नहीं लगेगा. And then welcome, which is the V1 verb. And then the guest, which is the object. Is it clear now what is simple future tense and how the sentence structure is? Now let us see, while we form the negative or the interrogative sentence, how will we use the future tense? Okay, so when we are forming the positive sentence or the affirmative sentence, that you all know कि subject plus will या shall फिर root form, root or the V1 form of the verb, we can say V1. ठीक है, सब will or shall plus root form of the verb use कर सकते हैं. जैसे कि I will see you tomorrow, the principal will welcome the chief guest. So these are the positive. Negative sentence में क्या होगा, आपको will के बाद not लगा देना है. जो भी सेंटेंस हो उसके बाजू में विल के बाजू में अगर आपने नॉट लगा दिया तो वो बन जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, रोहन विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो. अगर मैंने नॉट हटा दिया तो क्या होगा, रोहन विल कम टू द स्कूल टुमारो. लेकिन मेरे को नेगेटिव बनाना तो विल के बाजू में क्या लगा देने का, नॉट लगा देने का. सो रोहन विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो. द प्रिंसिपल विल नॉट एड्रेस द स्टूडेंट्स. ठीक है, सो वेरी इजी व्हेनेवर यू वांट टू फॉर्म द नेगेटिव सेंटेंस, जो सेंटेंस दिया उसमें विल के बाजू में नॉट लगा दो. ठीक है. Short form में you can use for shall not, you can use shan't, and for will not you can use won't. Okay.
Next is yes or no questions and questions beginning with WH words. So again इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कैसा होता है, जनरली हमने पहले भी देखा कि नॉर्मल सेंटेंस होता है तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और अगर इंट्रोगेटिव होगा तो वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसा ही जाता है, बस वही ऑर्डर में आपको जाना है, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. Okay, for the yes or no question, as you know, I have explained you कि will या shall plus subject plus V1 form of the verb or the root form of the verb. Let us go through one example. Ila will dance with her tomorrow. ठीक है? Ila will dance with her tomorrow. This is your sentence. In this sentence, what is the subject? Ila. Ila is our subject. Then will dance is our verb. ठीक है, उसमें will जो है वो हमारा सपोर्टिंग वर्ब है, और ये पूरा दैट इज द V1, और ये पूरा हमारा वर्ब बन गया. ठीक है, सो व्हेनेवर यू आर फॉर्मिंग द यस और नो क्वेश्चन, व्हाट यू विल डू इज आप ये दोनों वर्ड्स को इंटरचेंज कर दोगे. दैट इज ये इला विल को इंटरचेंज, मतलब इला विल गो दिस साइड एंड विल कम दिस साइड. So sentence will go like, will Ila dance with her tomorrow. बाकी पूरा as it is, dance से with her tomorrow तक तो सेम ही लिखा है, देखो. ठीक है, यहाँ पे हमने as it is ही लिखा है, लेकिन ये जो है ये सेंटेंस स्ट्रक्चर में इला विल की जगह विल इला. तो यस और नो क्वेश्चन में आपको इतना ही करना है, इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द क्वेश्चन वर्ड्स बिगिनिंग. सपोज विद द क्वेश्चन वर्ड, अगर आपका सेंटेंस है उसमें क्वेश्चन सेंटेंसेस है इंट्रोगेटिव, और उसका स्टार्टिंग में कोई क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं जैसे कि हु, विच, व्हाट, व्हेन, ऐसा सब, तो क्या करना चाहिए? लेट अस सी दैट. So when such kind of sentences are given, how the sentence structure goes? First is question word. जो भी question word है वो use करोगे. With that will or shall, then the subject, then the V1 form of the verb. ऊपर का जो sentence structure है वैसे ही है, बस left में आपको एक question word insert करना है, उतना ही. For example, the principal will address the students. ये हमारा normal sentence हुआ. इसमें हमारा subject क्या है? The principal. Main verb is address. Okay, and this is the supporting verb will. ठीक है, ये पूरा हम साथ में ही कंसिडर करते हैं, लेकिन हमको भी क्वेश्चन फ्रेम करना है, इसके लिए मैंने तोड़ के यूज किया है. ओके, सो फर्स्ट रूल इज क्या करते हैं, हम इन दोनों को एक्सचेंज करते हैं. तो यहाँ पे भी हमने एक्सचेंज कर दिया, ये विल यहाँ आ गया और प्रिंसिपल पीछे चला गया. सो दिस वेंट हियर एंड दिस केम here. Will the principal then remaining address the student. लेकिन हमारा टॉपिक क्या है? क्वेश्चन वर्ड. सो यहाँ पे मैं एक और वर्ड याद ऐड करूंगी, when. When will the principal address the student. तो पहले आपको ये इंटरचेंज कर देना है, उसके बाद जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया है ब्रैकेट में वो आप यहाँ पे पुट ऑन करोगे. क्लियर? सो लाइक दिस यू विल फ्रेम द क्वेश्चन वर्ड्स with beginning with in the question sentences or the questions. तो questions में अगर question word दिया हो तो कैसे फ्रेम करोगे वो भी देख लिया. ओके, now let us see where will we use the simple future tense. First is we'll use it to talk about future events in which our own wishes do not matter. हमारे wishes matter नहीं करते. ठीक है, it's a general thing. For example, traffic will be very heavy in the evening. Traffic will be very heavy in the evening. ये हमारा सेंटेंस है. It is a general thing. So वहाँ पे भी हमने future tense use किया है. Then next year you will see a beautiful hospital building at this site. Okay, this is again about the future. It is about a general thing, not about something in which we require our wishes or opinion. नहीं, ये एक general बात है. तो यहाँ पे भी हमने will use किया है. Okay. Next is we use will when we decide to do something at the time of speaking. जब हम अभी बोल रही हूँ मैं, ठीक है, उस टाइम पे मैंने कुछ डिसाइड किया, ओके मैं ये करूँगी, सो वो जो मैं अब करने वाली हूँ उसके बारे में at the time of speaking if I am describing, then we'll use will. जैसे कि have you locked the door,
आई एम सॉरी, आई विल गो एंड लॉक इट नाउ। अब बात करें तो उसने पूछा कि क्या आपने डोर लॉक किया था। सो द अदर पर्सन इज रिस्पॉन्डिंग कि ओह सॉरी, मैं अब भी जाके बंद करती हूँ या बंद करता हूँ। तो वो जो है वो अब जाके करने वाले हैं, बट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग दे आर सेइंग कि मैं भी कर दूंगी। तो वो जो है इन दैट केस यू विल यूज द विल। ओके, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल। नेक्स्ट इज व्हाई आर यू सो ग्लम। I have a slight headache. I think I'll consult a doctor. So glum means gloomy type. So the person is saying कि मेरा थोड़ा सा headache है, I will consult और I shall consult the doctor. So जब बात कर रहे हैं तब हम बोल रहे कि हाँ मैं डॉक्टर को मिलूंगी, ठीक है, या मिलूंगा. So that is a case of where you will use the simple future tense. Next is we will use it to talk about what we think or believe will happen in the future. कुछ फ्यूचर में होने वाला है जिसके बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत एश्योरेंस है, वहाँ पे भी तुम फ्यूचर टेंस को यूज कर सकते हो. आई थिंक द प्राइसेस विल बिकम स्टेबल इन 2 months. Okay, I'm sure you will get A1 in all the subjects. So this is some kind of assurity. You have the assurance that they might get it. Okay, so there you can use will. Then shall is used mostly in question forms. Generally question forms में use करते हैं या फिर I और we के साथ. I have told about that to you also. जैसे ही एग्जाम्पल में देखो, shall I get you a cup of coffee or tea? It's an offer. Again question है. Then we are getting late. Shall we take a cab? So it's a suggestion. यहाँ पे भी हमने shall को prefer किया है. ठीक है, हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे लेकिन एक काइंड ऑफ सजेशन दे रहे हैं, तो वहां पे भी हम लोग यूज करेंगे शैल. ओके, लेट अस मूव टू द एक्सरसाइज नाउ. एक्सरसाइज 1. So in this exercise you have to speak out, that is you have to write this in the notebook. Again it's a notebook exercise. Okay, so you will write it in your notebook. What you have to do is आपको interrogative और negative sentence frame करना है. So first one, this bus will take you to the railway station. फर्स्ट रूल फॉर मेकिंग द नेगेटिव सेंटेंसेस विल के बाद नॉट लगा देना है. इजी सेंटेंस क्या होगा, दिस बस विल नॉट टेक यू टू द रेलवे स्टेशन. और इंट्रोगेटिव अगेन इजी वर्ड, व्हाट यू विल डू इज दिस बस विल की जगह विल दिस बस, यस विल इधर आ जाएगा और दिस बस इधर चला जाएगा. सो विल दिस बस टेक यू टू द रेलवे स्टेशन, क्वेश्चन मार्क. Okay, 2 and 3 you will do. Let us discuss the fourth one. These insects will destroy the crops. These insect will destroy the crops. हमको इसका नेगेटिव करना है तो will के बाद क्या लगाएंगे, not. So these insects will not destroy the crops. Okay, और इंट्रोगेटिव में हम इंटरचेंज करेंगे. Will these insect destroy the crops? ओके, इस तरीके से आपको रिमेनिंग भी करना है आपके नोटबुक में. ओके, दैट्स इट. नेक्स्ट इज द गोइंग टू फॉर्म. Just go through the example. We are going to shift to a new house. This is some action which is for sure going to happen. ठीक है, ऐसा कोई एक्शन है जो पॉसिबली होने ही वाला है, कोई इंटेंशनली एक्शन है कि हाँ इसका है कि ये होगा ही, तो वहाँ पे हम going to यूज कर सकते हैं. ठीक है, शी हैज लेफ्ट एवरीवन बिहाइंड, शी इज गोइंग टू विन द रेस. मतलब सब उसके पीछे है तो वो एकदम आगे दौड़ रही है, तो पक्का श्योर है कि वो जीतेगी. ठीक है, सो व्हेन वी विल यूज द गोइंग टू, इट इज ऑल्सो एक्सप्रेसिंग द एक्शंस इन द फ्यूचर बट विथ एन इंटेंशन टू शो दैट देर आर इंडिकेशन समथिंग इज गोइंग टू हैपन. एक इंडिकेशन है कि या हाँ ये तो होगा ही, ऐसा कोई इंडिकेशन हो तो वहां पे आप गोइंग टू को यूज कर सकते हैं. ठीक है, लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स. वी आर गोइंग टू प्ले अ फ्रेंडली हॉकी मैच. ये इंटेंशन है कि हमारा फ्रेंडली मैच ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है. सो वहां पे भी आपने गोइंग टू फॉर्म ही यूज किया है. ठीक है, द स्काई इज ओवरकास्ट, इट इज गोइंग टू रेन. एक इंडिकेशन है कि हाँ ये तो ऐसा ही, मतलब आसमान में बादल छा गए हैं तो बारिश होने का चांसेस तो है. ठीक है, सो लाइक पहले वाले एग्जाम्पल में द गर्ल, मतलब सब लोग पीछे हो गए तो पक्का है कि वो जीत सकती है. या फिर ऐसा हो सकता है कि हम घर
चेंज कर ले, वी आर गोइंग टू चेंज, तो मतलब वो करने ही वाले हो, उसमें कोई ऑप्शनल नहीं है, देयर इज अ श्योरिटी अ काइंड ऑफ। ओके, सो विल हम यूज करते हैं फ्यूचर इवेंट्स के साथ जिसमें कोई कंट्रोल ही नहीं है। वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब आप बोल रहे हो तब वो करने वाले हो, ऐसा बता रहे हो, या कुछ फ्यूचर में होने वाले उसके बारे में सोच रहे तो। शैल वी और शैल आई यू नो कि ऑफर, सजेशन, क्वेश्चन या आई और वी के साथ यूज करते हैं। और गोइंग टू एक्शंस जो नियर फ्यूचर में ही होगा एंड वो जरूर होने वाला है, या एक काइंड ऑफ इंडिकेशन। ठीक है, लेट अस मूव टू द एक्सरसाइज, द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। एक्सरसाइज नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद विल और गोइंग टू फॉर्म, दोनों में से कोई एक। फर्स्ट वन, आई हैव फिनिश माई स्टडीज, आई एम गोइंग टू टेक अ न्यू जॉब, मैंने अपना स्टडीज कंप्लीट कर लिया है, तो नेक्स्ट क्या हो सकता है, वो जॉब लेगी, तो वो एक काइंड ऑफ इंडिकेशन है कि पढ़ाई खत्म तो अब जॉब, तो वहां पे हमने आई एम गोइंग टू। हाँ, और जो सब्जेक्ट है आपका प्रोनाउन, मतलब सब्जेक्ट में प्रोनाउन या नाउन है, उसके हिसाब से इज आर एम वेरी करेगा, आप इज आर एम ही यूज करोगे, इज फॉर सिंगुलर, आर फॉर प्लूरल एंड एम फॉर आई। ठीक है, सेकेंड वन यू विल डू। थर्ड वन, वुड यू लाइक टी और कॉफी, आई थिंक आई विल हैव कॉफी, आप टी या कॉफी पसंद करोगे, इट्स अ काइंड ऑफ सजेशन और एन ऑफर वी आर आस्किंग फॉर, देयरफॉर हमने विल यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं है, यहाँ पे कोई इंटेंशन भी नहीं है। Then fifth one, she has been playing in the rain whole evening, she is going to catch the rain, मतलब उसने ये एक्शन किया तो ये होने का 100% चांसेस है, तो वहां पे हमने is going to यूज किया। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड। रिमेनिंग यू विल डू इन द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ, ये आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है। टीबी मीन्स टेक्स्ट बुक, एनबी मीन्स नोटबुक। क्लियर, ओके। Let us move to the next unit, that is the continuous tenses. Okay, continuous tense, all the three tenses, that is the present, past and future, will have the continuous tense also. ठीक है, continuous tense means an action which has begun at the time of speaking or in the past or in the future, and that action will continue for a स्मॉलर और शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े टाइम तक वो एक्शन कंटिन्यू रहेगा, या फिर उसका इफेक्ट आपको फील होता है जब आप बात करते हो, तो उसे कहते हैं कंटिन्यूअस टेंसेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल पास्ट का कोई एक्शन है, वो पास्ट में खत्म हो चुका है, लेकिन हम बोल रहे तब उसका थोड़ा इफेक्ट आ रहा है, जस्ट अबाउट टू खत्म हो गया था या जस्ट अब भी खत्म हुआ, हाँ, तो वो है पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब आप अभी बोल रहे हो, आपने बोलते टाइम वो एक्शन स्टार्ट किया एंड थोड़े टाइम तक वो चलेगा, तो वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब फ्यूचर में आपने कोई एक्शन स्टार्ट किया एंड वो एक्शन लंबे टाइम तक कंटिन्यू रहेगा या शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम तक कंटिन्यू रहेगा, ऐसा आपको लगता है, तो वहां पे हम यूज करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, सो लेट अस सी द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द थ्री फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस इज और आफ और एम, is will go with the singular, are will go with the plural and am will go with am. ठीक है, is are am plus v1 that is a root form of the verb and आप लगाओगे इसमें ing, for example play, playing, eat, eating, run, running, then the object. ठीक है, सो सब्जेक्ट प्लस इज आर और एम प्लस v1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई इज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई है, इसके लिए मैंने एम यूज किया, प्ले मेरा v1 वर्ब था, उसमें ing लगा के प्लेइंग एंड देन द ऑब्जेक्ट। Clear? So present continuous tense will be like subject plus is or are or am plus v1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करोगे आप ऑल द थ्री टेंसेस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर हो, ये v1 प्लस ing तो कॉमन ही है, सिर्फ यहाँ का स्ट्रक्चर चेंज होता है। ठीक है, सो अंडरस्टूड फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेट अस गो थ्रू सम मोर एग्जांपल्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक एंड आल्सो हाउ टू फॉर्म द नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस।
यस. सो वाइल फ्रेमिंग द अफर्मेटिव सेंटेंस जो हमने अभी किया उसमें इज आर एम प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज V1 प्लस आई एन जी. आई एम प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, ये सब नॉर्मल हो गया. ठीक है. नेगेटिव में क्या होगा, बस इज आर एम के बाद क्या लगाओगे, नॉट लगा दोगे. मतलब V1 वर्ब जो है उसके पहले आपको नोट लगाना है. ठीक है. आई एम नॉट प्लेइंग, जैसे कि यहाँ पे आई एम प्लेइंग था तो यहाँ पे हमने नॉट लगा दिया तो आई एम नॉट प्लेइंग. ठीक है. दे आर नॉट प्लेइंग, तो नेगेटिव में इजी है. जो इज आर एम वर्ब दिया या वॉज और वेर उसके बाद जो में आप नॉट लगा दोगे तो नेगेटिव सेंटेंस बन गया. ठीक है. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विल गो लाइक और द क्वेश्चंस इज आर एम शुड बी पुट बिफोर द सब्जेक्ट. अगेन ये तो पता है आपको क्वेश्चन वर्ड वाला नहीं हो, नॉर्मल यस और नो तो हम क्या करते हैं इंटरचेंज कर देते. यहाँ पे भी इंटरचेंज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल दे आर प्लेइंग, सपोज दे आर नॉट प्लेइंग है, इसके जगह दे आर प्लेइंग सेंटेंस दिया है तो इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, आर दे प्लेइंग. हम इंटरचेंज कर देंगे लाइक दिस, आर दे प्लेइंग. और यहाँ पे देखो अभी ये आर दे प्लेइंग की जगह वेयर लगा दिया तो वेयर आर दे प्लेइंग. तो क्वेश्चन वर्ड भी इंट्रोगेटिव सारे टेंसेस में ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, कोई खास डिफरेंस नहीं है. बस आपको इंटरचेंज करना है सपोर्टिंग वर्ब और सब्जेक्ट के साथ. वही हमने यहाँ पे किया है. इसका बेस सेंटेंस क्या था, दे आर प्लेइंग. ठीक है. और उसके जगह हमने क्या कर दिया, आर दे प्लेइंग. इसको इधर लेके आ गए और इसको इधर लेके चले गए. और वो करने के बाद अगर आपको क्वेश्चन वर्ड ब्रैकेट में दिया है तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो एंड देन ऑफ कोर्स यू विल पुट अप अ क्वेश्चन मार्क. ओके. शॉर्ट फॉर्म्स में आई एम नॉट का आई एम नॉट, आरंट okay, is not ka isn't. This you can remember. Understood how and when to use or how to frame for negative and interrogative sentences in the present continuous form. Okay, let us see where all we use the present continuous form. Yes, we use the present continuous tenses to express an action that is going on or is in progress at the present time. अभी वो थोड़ा प्रोग्रेसिंग में है, अब वो एक्शन चल रहा है तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. आई एम ब्राउजिंग द नेट, मैं जब बोल रही हूँ तब मैं सर्फिंग भी कर रही हूँ. मदर इज कुकिंग डिनर, सो शी इज डूइंग दैट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. हम जब बात कर रहे हैं शी इज राइट नाउ डूइंग दैट एक्टिविटी, तो वहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस. या फिर टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द प्रेजेंट टाइम बट नॉट नेसेसरीली एट द टाइम और द प्रेजेंट मोमेंट. जो हो रहा है लेकिन जब आप बोल रहे हो या फिर इस टाइम पे वो नहीं हो रहा है लेकिन वो हो रहा है. अनुष्का इज प्रिपेयरिंग अ प्रोजेक्ट ऑन एंडेंजर्ड एनिमल्स. मतलब अनुष्का आजकल प्रोजेक्ट बना रही है. आप बोल रहे हो तब वो बैठ के प्रोजेक्ट नहीं कर रही होगी लेकिन आजकल वो कर रही है तो अभी वो ट्रेंडिंग हो या फिर अभी वो एक्शन थोड़े टाइम तक चल रहा हो तो वो डिस्क्राइब करने के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यूज कर सकते हो. ठीक है. वी आर लर्निंग कथक, ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो तब कथक सीख रहे हो बट आजकल हम कथक सीख रहे हैं. ओके. नेक्स्ट इज इट इज यूज टू इंडिकेट अ प्लान्ड फ्यूचर इवेंट. फ्यूचर में ये चीज आप करने ही वाले हो, ऐसा कोई प्लान्ड चीज हो तो वह उसको डिस्क्राइब करने के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करोगे. फॉर एग्जाम्पल माई पेरेंट्स आर लिविंग फॉर सिंगापुर टुमारो. कल वो जा रहे हैं, इट्स अ फ्यूचर एक्शन, इट इज फॉर श्योर टू हैपन. So it is there we'll use the present continuous. We are shifting to a new house next week. हम next week shift हो रहे हैं. It is going to happen. तो फ्यूचर का कोई इवेंट जो प्लान हो, जो होने ही वाला है, वहाँ पे आप present continuous यूज कर सकते हो. Clear? Understood how the sentence structure and everything is? Okay. Let us move to past continuous tense. Okay, past continuous tense. Now let us see the sentence structure of the past continuous tense first. So past continuous tense will have the sentence structure subject plus was या फिर were use करेंगे. मैंने कहा था plus V1 plus ing form of the verb plus object. ठीक है. V1 plus ing form of the verb. ठीक है. मतलब V1 में आप ing लगा दोगे सो इट विल बी द सेम. एग्जाम्पल दे वर डांसिंग इन द रेन. कंटिन्यूस टेंस में मैंने कहा कि हमेशा ing ही लगेगा वर्ब के पीछे, बस वही है. और यहाँ पे हमने वेर यूज किया बिकॉज हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो वॉज यूज करोगे. फॉर एग्जाम्पल शी वॉज
प्लेइंग विथ मड। ओके, तो यहाँ पे हमने वॉज यूज किया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वॉज या वेर यूज करोगे, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब या फिर V1 प्लस आईएनजी, जैसे कि प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग। ओके, डांस प्लस आईएनजी डांसिंग, लाइकवाइज। ठीक है, नाउ लेट अस सी द नेगेटिव फॉर्मेशन एंड द इंटरोगेटिव एंड द यूसेस ऑफ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस तो हमने देख लिया। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, एज यूजुअल वॉज और वेर के बाद नॉट लग जाएगा, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम के बाद नॉट लगा, यहाँ पे वॉज और वेर के बाद लग सकता है। आई वॉज नॉट प्लेइंग, दे वर नॉट प्लेइंग। इट्स इजी, यस। फॉर क्वेश्चन वर्ड अगेन आप इंटरचेंज करोगे, दे वर प्लेइंग की जगह क्या होगा, वर दे प्लेइंग। वॉट वर दे प्लेइंग, अगर क्वेश्चन वर्ड दिया है तो वो आपको इसके आगे लगा देने का, तो ये हो जाएगा वॉट वर दे प्लेइंग। तो बस इसको आपको इंटरचेंज करना है। नॉर्मल सेंटेंस कैसा होता, दे वर प्लेइंग। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें से इसको यहाँ ले गए और इसको यहाँ लेके आ गए। क्लियर। शॉर्ट फॉर्म्स क्या है, वॉज नॉट का वॉजेंट, वेयर नॉट का वरंट। ओके, नाउ लेट अस सी कि हम कहाँ यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम यूज करते हैं टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज गोइंग और कंटिन्यूइंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। पास्ट में वो एक्शन थोड़े टाइम तक चला, ठीक है, हाँ कंटिन्यू रहा, तो वहाँ पे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल वॉज टेकिंग अ राउंड ऑफ द स्कूल। बहुत पहले वो राउंड ले रहे थे, अभी जब बोल रहे हो तब नहीं ले रहे थे, लेकिन पहले वो ले रहे थे। एट 6 o'clock लास्ट इवनिंग वी वर फ्लाइंग टू बर्लिन। हम कल 6 बजे मतलब बर्लिन जा रहे थे, तो वो एक्शन है जो पास्ट में हो रहा था, अभी नहीं, पर वो पास्ट में थोड़े टाइम तक कंटिन्यू रहा, फिर खत्म हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे आप यूज करोगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, क्लियर। Okay, next is the future continuous tense. Let us see the sentence structure of the future continuous tense. Okay, future continuous tense sentence structure: subject plus will be or shall be plus V1 plus ing plus object. यहाँ पे will be यूज करना है या फिर shall be भूलना मत, ठीक है ना। हाँ, they will be playing cricket. She will be writing the story. ओके, आईएनजी वर्ड यूज किया है हमने और विल भी यूज किया है, और आई और वी के साथ आप शैल भी यूज कर सकते हो। ओके, क्लियर। नाउ लेट अस सी कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव में कैसा है। यस, फॉर नेगेटिव इट विल बी लाइक विल नॉट बी या शैल नॉट बी, मतलब विल बी और शैल बी के बीच में आपको नॉट यूज करना है, देन आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब या फिर V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई शैल नॉट और विल नॉट बी प्लेइंग, दे विल नॉट बी प्लेइंग। देखा, विल और बी के बीच में हमने नॉट यूज कर दिया ना। हाँ, तो ऐसा नेगेटिव फ्रेम करोगे। और इंट्रोगेटिव में क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, जैसे कि यू विल बी था, उसके जगह विल यू बी, एज इट इज। हम पहले कैसे करते थे इंटरचेंज, वैसे ही करना है, बस बी अपने जगह पे ही रहेगा, विल और यू या फिर विल और जो सब्जेक्ट है उनके बीच में इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, वेयर विल दे बी प्लेइंग, विल दे बी प्लेइंग या वेयर विल दे बी प्लेइंग, फिर आगे आप क्वेश्चन वर्ड लगा दोगे तो वो WH वाला भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा। क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन। और विल नॉट की जगह वोंट, शैल नॉट की जगह शोंट भी आप लिख सकते हो इन शॉर्ट फॉर्म। क्लियर, ओके। नाउ लेट अस सी वेयर विल वी यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। We'll use the future continuous tense to express an action that will be going on or continuing at some point of time in the future. Future में at a point of time वो action अगर continue रहा थोड़े टाइम तक, तो वहाँ पे आप यूज करोगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, So that was all regarding the future continuous, past continuous and present continuous. अब देखते हैं कि जब हम ing फॉर्म करते हैं verbs का, तो क्या क्या कुछ कुछ चीज़ों में एक्सेप्शनल है जो ध्यान रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप
जनरली आईएनजी जब ऐड करते हो वर्ब के पीछे तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है. कौन सा पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल. उसमें हम डायरेक्टली आईएनजी, जैसे कि वर्ब दिया उसके पीछे आईएनजी लगा दिया. देयर आर केसेस अगर आपका वर्ब जो है वो ई पे खत्म होता है, ई अल्फाबेट पे, ई लेटर पे, तो वहां पे आप क्या करोगे? ई को रिमूव करके आईएनजी लगाओगे. COME कम, उसमें से ई हटा के कमिंग. गिव में से ई हटा के गिविंग. ओके. नेक्स्ट, अगर कुछ कुछ केस में क्या होता है, बीच का जो लेटर होता है, लास्ट लेटर होता है, उसको हम डबल करके हम आईएनजी वर्ब फॉर्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कट, कटिंग, कट, कटिंग. ओके. देन पुट, putting, begin, beginning, double N. Okay. So in certain cases we double the middle letter. Next is in case of verbs ending with IE. अगर आपके verb के end में IE लगा है तो वो change हो जाता है Y में. ठीक है. For example, die, DYING, dying, lie, LYING, lying. तो ये कुछ कुछ है जो याद रख सकते हो. Okay. Let us move to the exercise 1. Okay, exercise 1 you have to fill in with the present continuous form. It's very easy. I have done few of them. Remaining you will do in the homework and you will do this textbook in the textbook only. ठीक है. We are doing our best. We है तो are आएगा और do का doing. Many doctors are treating the cholera patients. So treat का treating हो गया और are because doctors plural है. The plane, एक ही plane है तो क्या आएगा? Is flying at a very high speed. Next, these children are attending yoga classes regularly. So ये जो भी हुआ वो ing present continuous tense में हुआ. ठीक है. Exercise 2 and 3 will be omitted. हम exercise 2 और 3 को omit कर रहे हैं. So we'll directly move to exercise number 4. Okay. Let us move to exercise number 4. Exercise number 4, you have to fill in the blanks with the correct form of the verbs given in the bracket in the future continuous tense. Future continuous tense में आपको fill up करना है. I will be waiting for you when you arrive at the airport. Wait was the verb, उसका waiting हो गया और will be use किया. आप shall be भी use कर सकते हो. ठीक है. Next is fourth one. They will be playing football in the next period. Sixth one, tomorrow at this time we shall be या फिर will be going flying to Paris. Okay. So likewise you will do the remaining. This also you will do in the textbook only. Textbook में ही करना है. Okay. Let's move to exercise number 5. You have to form the negative and the interrogative sentences. First and the fourth I have done for you. Remaining you will be doing it yourself and you will be doing this exercise in the notebook. ये आप notebook में करोगे because there is no space to be done. Okay. So let us do the first one. The hounds will be chasing the deer. Yes, the hounds will be chasing the deer. तो आपको इसका नेगेटिव करने के लिए क्या करना होगा? will और be के बीच में आप क्या लगाओगे? not. So the hounds will not be chasing the deers. will not use किया है, देखा? और इंट्रोगेटिव क्या होगा? ये वर्ड इधर चला जाएगा और ये वर्ड इधर. तो will the hounds be chasing the deer? Okay. Next is the fourth one. She will be preparing for the examination. इसका नेगेटिव क्या होगा? She will not be preparing for the examination. She will not. ठीक है. और इंट्रोगेटिव क्या होगा? Will she be preparing for the examination? Will she be preparing for the examination? Clear? Likewise, you will do the remaining in your notebook. See, sometimes there are sentences where we get confused कि हमको present continuous use करना है कि simple present. Just say the two examples. I go for a walk every day at 6 a.m. मैं हर दिन 6 बजे चलने जाता हूँ. I am going for a walk now. मैं अभी चलने जा रहा हूँ.
ठीक है। सेंटेंस 1 जो है ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है, हमारा जो हैबिचुअल एक्शन जो हम रेगुलरली करते हो, तो वहां पे आप सिंपल प्रेजेंट ही यूज करोगे। लेकिन सेंटेंस 2 जो है वो देखो, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक नाउ, अभी मैं जा रहा हूं, तो ये क्या है, आप बोल रहे तब वो एक्शन कर रहे हो, तो ये जो है वो कंटिन्यूअस टेंस है। क्लियर? तो simple present tense describe the action that takes place at a regularly or habitually, while the present continuous tense describe the actions going on at the present moment. अभी के टाइम पे वो चल रहा है, when you are speaking उस टाइम पे वो एक्शन चल रहा है, तो वहां पे आप present continuous यूज करोगे। क्लियर? ओके। With the simple present tense, we use the words like usually, generally, always, never, sometime, every day, often, etc. Simple present tense के साथ आप ये सारे words use करते हो, लेकिन present continuous tense में you use the words now, today, etc. तो अभी, इसी वक्त, आज, तो ये सब एक्शंस के बारे, ये सब टाइम ड्यूरेशन पे अगर आप एक्शन डिस्क्राइब कर रहे हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, या फिर यूजुअली जनरली ऐसे वर्ड्स को यूज करके अगर सेंटेंस फ्रेम किया है तो वो सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है? क्लियर? ओके। Now there are certain verbs which are not used in continuous tense, उसको हम continuous tense में use नहीं करते हैं। ठीक है? जैसे कि see, hear, taste, smell, ऐसे कुछ कुछ verbs है जिसको हम continuous tense में use नहीं करेंगे। Like, want, know, think, believe, agree, understand, hate, wish, ये वर्ड्स भी हम यूज़ नहीं करेंगे। बिलोंग, कंटेन, सच वर्ड्स अगर आपके सेंटेंस में है तो वो भी हम हमेशा उसको अलग टेंस में यूज़ करते हैं, या फिर नॉर्मल V1 में यूज़ करेंगे, लेकिन उसको हम कंटिन्यूस में यूज़ नहीं करेंगे। सी द एग्जाम्पल्स, दीज फ्लावर्स आर स्मेलिंग स्वीट नहीं बोले, दीज फ्लावर्स स्मेल स्वीट वी से, तो स्मेल जो है वो V1 वर्ब हुआ। ठीक है? आई एम नॉट नोइंग हिज एड्रेस, आई डू नॉट नो हिज address is the correct form. ठीक है? This book is containing some useful information is not correct. This book contains some information useful or useful information. This is the correct sentence. Okay? So likewise there are some verbs which will not be used in continuous tense. Okay? Let us move to the last exercise of the chapter. Exercise number 6. You have to fill in the blanks with the correct form of the present tense, that is the simple present or present continuous. आपको दोनों में से कोई एक यूज करना है। अगर हैबिचुअल एक्शन हो तो हम प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, और आप बोल रहे तब वो एक्शन हो रहा है तो कंटिन्यूअस टेंस। ओके? लेट अस सॉल्व इट। दिस आल्सो यू विल डू इन द टेक्स्ट बुक ओनली। ठीक है? ओके। फर्स्ट वन, इट रेन्स हैविली इन जुलाई एंड अगस्त, ये रेगुलर होता ही है तो इसके लिए हमने रेन्स यूज किया। फोर्थ वन, टुडे शी डैश मिक्स्ड फ्रूट जैम, जब आप बोल रहे हो तो आप वो एक्शन होने वाला है उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हो। ठीक है? तो वो क्या हो गया, इज प्रिपेयरिंग। आई डू नॉट एग्री विथ यू ऑन सम ऑफ दीज पॉइंट्स, मतलब ये एक मतलब हम बता रहे, अपना रिव्यू दे रहे, उसमें कोई कंटिन्यूटी डिस्क्राइब नहीं करना है, तो वहाँ पे भी हमने सिंपल मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज किया है। ठीक है? एंड नेक्स्ट इज फॉर 8th वन ऑल्सो, यूजुअली आई डू नॉट एंजॉय वेस्टर्न म्यूजिक। 9th, आई होप यू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, हमने बोला कि अंडरस्टैंड हम कभी भी ING में यूज नहीं करते। यस। 11th, we are getting our house painted since Diwali is approaching fast, हम हमारा घर पेंट करवा रहे हैं क्योंकि दिवाली आ रही है, तो वो जो आप बोल रहे हो उस टाइम पे वो एक्शन का कंटिन्यूटी डिस्क्राइब हो रहा है। Babies cry when they are hungry, it's a habitual thing, so we'll not use the continuous. And the last, if I do not know the meaning of a word, I immediately look up a dictionary. Okay, so this is again a habit, therefore we have used the simple present tense. So here we end today's portion. Okay, if you have any doubt you can ask me later. Okay, hope you go through the whole video and try to solve the exercises. Okay.